everyone. Hi everyone. We're here from Manas Foundation today talking to you about mental health. I'm Harshali, a clinical psychologist working here at Manas, and we have with us today Mr. Naveen Kumar, one of the founding members, who has an experience of over 25 years of working in the mental health sector. Hello everyone. So in our last session, sir, we talked about habit formation and we gained a lot of insight. We had great feedback, we received some interesting questions. So I would request you all to please follow our socials for the answers to some of those questions. Moving forward with our session today, we'll be talking about overthinking. So the topic for today is overthinking getting the best of you. Now when we talk about overthinking, one thing that comes to mind is thoughts. So I want to ask you, sir, this question often comes to mind, is that how are thoughts generated? Thank you, Harshali, for introducing me. See, first of all, I would like to also recollect what we talked about last time. Right. Last time we had talked about specifically about how to inculcate positive habits that we always want. Yeah. And despite best of our efforts, most of us are unable to inculcate those habits. Could be going to the gym, could be eating healthy, could be socializing with the right people and everything. And in contrast, we tend to develop the habits which are not good for us much more easily. Right. So if you will remember, and if somebody wants to really review that, you can always visit our page where that video is. Now, talking about today, what you picked up is overthinking. So, like you rightly said, we have to approach this from the angle of the basic कि असलियत में होता क्या है. तो सबसे पहली बात जो आएगी वो आएगी कि हमारे विचार, हमारे थॉट्स जनरेट कहाँ से होते हैं, कहाँ से. So I would like to say, and this is very well depicted through certain examples that I will give. तो आप ऐसा समझिए कि थॉट्स आपको वही आ सकते हैं जो आपके लाइफ स्पेस में. बाय लाइफ स्पेस आई मीन जो भी आपकी जिंदगी में किसी भी एक समय पे हो रहा है, whatever is you are experiencing at any given point of time, whatever your needs are, whatever your desires are, whatever the stressors you have, whatever activities you are engaging in, whatever people you are meeting with, वो सब मिला के is something like your thought का repertoire. वही thoughts आ सकते हैं. इसको अगर एक बहुत ही crude example से समझें, तो एक एयरक्राफ्ट से जब बैगेज डाउनलोड होता है तो उसमें से सिर्फ वही निकल सकता है जो उस एयरक्राफ्ट में रखा गया. तो जो उसमें 200-300 पैसेंजर्स थे, वो जो भी लेके चढ़े थे, वही उसमें से निकल सकता है, कोई नई चीज नहीं आ सकती. सो मेरे को आज जो थॉट्स आ सकते हैं वो मेरी जो उस समय लाइफ स्पेस है, जो इस समय मेरे परिव्यू में चीजें हैं, उन्हीं से रिलेटेड है. जैसा मैंने कहा, जब एक एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है तो उसमें जितने भी लोगों का लगेज रखा हुआ है, वो आपके आज का थॉट का यूनिवर्स है. उसी में से थॉट्स आते हैं. दूसरी बात, थॉट्स ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं एज कंपेयर टू रिमेम्बरिंग. याद करना इज अ डिफरेंट प्रोसेस. याद करने में हम कॉन्शियसली चीजों को याद करने की, रिट्रीव करने की, उनके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आप कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्चुअल आपका एक कॉन्शियस एफर्ट है किसी चीज के बारे में या कुछ सोचने का या उसको पढ़ने का. वो एक बिल्कुल अलग चीज है. सो रिमेम्बरिंग एंड कंसंट्रेटिंग और लर्निंग समथिंग इज अ डिफरेंट थिंग एज कंपेयर टू ऑटोमेटिक थॉट जनरेशन जिसकी हम बात करें. तो आज जैसा आपने टॉपिक किया है ओवर थिंकिंग, उसके लिए अगर हम देखें तो थॉट्स जो भी आपका रेpertoire है उसमें से जनरेट होंगे. और कैसे आएंगे? ऑटोमेटिकली, रैंडम. कोई जरूरी नहीं है कि पहले मम्मी का थॉट आया तो उसके बाद डैडी का आएगा, डैडी के बाद फिर खाने का आएगा, खाने के बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं. किसकी सिवियरिटी है, किसकी ज्यादा प्रोमिनेंस है. तो ऐसे समझिए कि एयरक्राफ्ट लैंड हो गया,
अब जो पीछे वहां पे जो लोडर है उसके ऊपर है वो किसका बक्सा पहले फेंकता है कन्वेयर बेल्ट पे, कोई आप ये नहीं कह सकते कौन सा पहले है। यस, आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई फ्रंट वाले पहले आएंगे या पीछे वाले पहले आएंगे, लेकिन आप देखेंगे जब आप वहां खड़े हुए तो ये बिल्कुल रैंडम है और इसमें आपके ऊपर आपका बहुत कम कंट्रोल होता है कि कौन सा थॉट जनरेट होगा है और वो किस ऑर्डर में आपको आ रहे हैं। तो अगर ये आप एक बेसिक चीज समझ लें, so it will become very easy for you and for everybody listening to us to see कि क्या करना है इसके बारे में और क्या हो सकता है। Right. Also, sir, when we talk about this, तो एक बहुत ही common चीज जो मन में आती है and a lot of people must be facing it, I'm sure, is that we keep getting the same thought continually. एक ही टाइप का विचार बार बार आता है, तो ऐसा क्यों? इसकी देखिए आप इसको दो तरीके से समझिए। What is a thought? Thought is an ideation about something. ये फिजिकल चीज तो है नहीं, ये एक मेंटल इमेजरी है, मेंटल स्टिमुलेशन है, मेंटल किसी भी तरह का एक ये इट्स अ नॉन फिजिकल कॉन्सेप्ट व्हिच इज दैट। तो या तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ स्पेस इतनी छोटी है कि आपके पास ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो एक ही तरह के थॉट, मान लीजिए कोई व्यक्ति एग्जैक्ट पॉवर्टी में जी रहा है या कोई व्यक्ति किसी कैप्टिव एनवायरनमेंट में है या किसी और रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में, तो उसकी जो आप देखेंगे थोड़े दिन बाद उसकी जो स्पेस है वो इतनी लिमिटेड हो जाएगी कि उसको सिवाय उन चीजों से निकलने के मैं इससे कैसे बच सकता हूँ, कहाँ से मुझे खाना मिलेगा, वेयर विल आई गेट माय नेक्स्ट मील फ्रॉम, इसके सिवा कुछ आएगा नहीं। हमारा कोलोकियल सेइंग है भूखे पेट ना होए भजन हो पाता, दैट इज वेरी ट्रू हियर आल्सो, दैट इफ यू आर हंग्री यू विल नॉट गेट एनी अदर थॉट्स। एक तो ये दूसरा और जो ज्यादा प्रोबेबल रीजन है वो मैं कहूँगा ये है कि हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि हम एक ही तरह के थॉट से जिस थॉट को हम एंटरटेन किए जाते हैं, जिस थॉट को हम रेगुलरली जिसमें एंगेज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। आई विल गिव यू अगेन द एग्जांपल फ्रॉम एयरक्राफ्ट। जो बैग आपने वहां से उठा लिया वो आपका अपना हो गया, जो अभी भी उस पे है वो उसी घूम रहा है और घूम के फिर आएगा दोबारा से टू एंटाइस यू। अगर आपने वो उठा लिया तो वो आपका हो गया। तो सिमिलरली जिन थॉट्स के साथ हम एंगेज करते हैं, जिन थॉट्स के साथ हम ज्यादा एंगेज करते हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उनकी प्रोपेंसिटी आने की बढ़ती चली जाती है। Okay. So when we talk about this, I'm sure a lot of listeners would also agree कि आजकल if we shift our focus for a minute to self-help books, a lot of people are engaging with them, it's trending in the charts आज के टाइम में, और अगर हम फैक्ट चेक करें तो कोई भी पॉपुलर बुक which is in the bestseller list today, it must have sold 1 million copies and the ratings for it on websites like Amazon, Script, Flipkart 4.5, 4 out of 5 ratings they have, suggesting कि बहुत ही high likability है among users उसकी। मगर अगर हम ये देखें कि despite this high likability, क्या उसकी उतनी applicability है? उसकी उतनी applicability in real life नहीं है। That is very low. So people are often saying ना कि हमारा मन नहीं करता करने का, तो हम छोड़ देते हैं फिर बीच में, we don't engage, continue to engage in it. So what to do about that? I will before I answer your question specifically, I'll give you an example from reality. और ये एक बहुत कॉमन चीज है जो बहुत लोग फेस करते हैं। हमने जैसा कहा कि मन नहीं करता, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि उनको विचार चाहने से आने लगे या उनको वो चीजें करने की इच्छा या वो चीजें करने के विचार अपने आप आने लगेंगे, जैसा हमने पिछली बार कहा कि किसी भी अच्छी हैबिट को पढ़ने के लिए समय लगता है। सो जस्ट लाइक एनी फिजिकल हैबिट, एक मेंटल थॉट प्रोसेस को भी डेवलप होने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना। अब आते हैं आपका दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि सेल्फ हेल्प बुक्स की एफिकेसी क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि हम सब अपनी बेहतरी चाहते हैं, वी ऑल वांट टू इंप्रूव आवरसेल्व्स, उनकी इतनी रेटिंग्स हैं, उनकी इतनी लाइकेबिलिटी है और
उनकी इतनी सेल्स होती है, बट अगर हम उनकी इफेक्टिवनेस को उसके अगेंस्ट देखें, सो इट कम्स टू वेरी dismal level Yeah. of efficacy. Yeah. Because the real part lies in the implementation of what is being preached. So preaching is one part. Right. उसको implement करना, उसको अपने जीवन में उतार पाना, उन चीजों को कर पाना, वहां पे तुम्हारी बात आ जाती है जो कहते हैं कि हमारा मन नहीं करता. तो it becomes a chicken and egg story where मन नहीं करता इसलिए मैं करता नहीं, और करता नहीं इसलिए मेरा मन नहीं करता. You get my point? Yeah. Because आपका मन नहीं कर रहा, आप वेट कर रहे हैं कि जब मेरा दिल करेगा सुबह 4 बजे उठ के मैं एक्टिव होऊंगा, तब मैं दौड़ने जाऊंगा. जब तक वो नहीं होता मैं नहीं करूंगा. तो वो तो होने वाला है. इसके अगेंस्ट जो कि हम वो कर नहीं रहे हैं, इसलिए वो होने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती चली जाती है. तो एक बार आपने किताब पढ़ ली, आप रात में सो गए, मोटिवेट हो गए, अगले दिन आप वापस अपनी जिंदगी में उसी लाइफ प्लेस में है बिना किसी चीज के. तो आएगा क्या उसमें से? वही जो उस एयरक्राफ्ट में रखा हुआ, वही निकलेगा. वही थॉट्स उसी ऑर्डर में तो नहीं कहूंगा, लेकिन रैंडमली वही चीजें आपको बार बार आती रहेंगी जो आप चाह रहे हैं. और जो आप चाह रहे हैं कि एक मोटिवेशनल थॉट आए, एक इच्छा है, एक डिजायर है, वो नहीं. At this point, I would also like to request the audience that if you have any questions, any suggestions, any feedbacks that you want to ask, तो आप comment section पे डाल सकते हैं, and we'll try to take it up in between our chats. So, sir, we often say ना, people often say that it's better कि हम overthink कर लेते हैं, over analyze कर लेते हैं किसी situation को, उसके सारे aspects को, कि जब the worst thing happens, because we're already expecting it, we don't feel that time. So it's better कि हम सारा सब कुछ over analyze करके पहले से ही बैठे होते हैं. Does that have any truth to it? See, साइकोलॉजी में किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझने के लिए और वो किस तरीके से काम करता है, to understand how people behave and how they conduct themselves, एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया है जिसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ये है कि हम अपने आप को एक असली खतरे में डालने के बजाय अपने आप को कोई ऐसी सांत्वना देते हैं जिससे कि हम उस खतरे से बच जाएं और हमें बुरा भी ना लगे. देखिए, आज के टाइम में अगर कोई आपको कहे कि आप कमजोर हैं तो आपको बुरा लगेगा. ठीक है. कोई आपको डरपोक कहे तो आपको और भी बुरा लगेगा. कोई आपको बेवकूफ कहे तो और भी बुरा लगेगा. तो जैसे जैसे आपके नेगेटिव एट्रीब्यूशन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, हमारे लिए उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए हमने अपने आप को इस नेगेटिविटी से बचाने के लिए बहुत सारे हम ऐसे काम करते हैं जिनको कि हम डिफेंस मैकेनिज्म में कह सकते हैं. बहुत सिंपल सा उदाहरण है, हमारे पुराने मुहावरों में से देखें कि अंगूर खट्टे, उसका मतलब क्या है? जो चीज हम कर नहीं पा रहे या हम अचीव नहीं कर सकते, उसको हम कहने लगते हैं कि इसमें वो वैल्यू नहीं है कि मैं इसको. सिमिलरली, जैसा तुमने कहा कि मैं अगर पहले से ही पूरी तबाही का एक मंजर अपने दिमाग में पहले सोच चुका हूँ, तो फिर अगर छोटा मोटा नुकसान हो भी जाता है तो मैं कुछ नहीं उसका. ये बिल्कुल उसी तरह की चीज है कि हम एक बड़ी परेशानी से बचने के लिए छोटी परेशानी को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं. लेकिन इससे यकीन मानिए, डिफेंस मैकेनिज्म से आप कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं, लेकिन या तो हम इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे या इन्हें बहुत समय तक इस्तेमाल करेंगे. तो ये आपकी जो असली ग्रोथ है उसको बहुत हद तक कम कर देंगे और आप एक मीडियोकर लेवल पे स्टैग्नेट कर जाएंगे, जो कि एक अपने आप में आपके लिए स्ट्रेसर बन सकता है. सो बहुत जरूरी है ये समझना. और अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप किसी प्रोफेशनल से बात करें जो आपकी कॉन्डक्ट, आपके थॉट प्रोसेस में इन चीजों को देख के आपको जागरूक करा सके. क्योंकि बदलना आप ही को पड़ेगा, लेकिन वो व्यक्ति आपको जागरूक जरूर करा सकता है. देखिए, आपका ये टनल इफेक्ट है, आप ये सप्रेशन कर रहे हैं, आप ये
ऑपोजिशनल थॉट्स ला रहे हैं, आपके जो भी कुछ आप कर रहे हैं, 20-25 ऐसे गिने चुने अलग अलग लोग बोलते हैं, अगर आप उनको देख पाएंगे अपने व्यवहार में तो बहुत मुमकिन है आप उनको कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो इस ओवर थिंकिंग का अगर कोई फायदा है तो वो इतना सा लिमिटेड है कि वो थोड़े समय के लिए आपको चोट लगने से, और चोट भी जो पर्सनालिटी वाइज या आपकी इमेज को जो चोट लगी उससे आपको बचा देता है। बियॉन्ड दैट इसका कोई खास बड़ा फायदा नहीं। So we've received some questions as well. So Ayushi is asking, how can we overcome with the thought मन नहीं करता? So how do we overcome with this thought? मन नहीं करता तो मैंने अभी जैसा कहा कि मन नहीं करता का मतलब ये है कि आपके पास इनफ रीजंस नहीं है किसी उस एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए। पहली चीज, जैसे हमने पिछली बार बात किया था, आपने अभी तक उस एक्टिविटी में इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट करने के बाद अपने आप को उससे आपने कंपेल नहीं किया है कि आप उसको कर पाए। उस काम की आपको हैबिचुएशन नहीं है। आप जब उस एयरक्राफ्ट में चढ़ेंगे तो आपको बक्सा लेके ही नहीं चढ़ेंगे जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं आने की। सो यू विल हैव टू एक्वायर दैट पीस ऑफ लगेज, देन नेक्स्ट टाइम यू फ्लाई इट विल कम। सो अगर इसको सिंपली आप समझें तो आपको उस एक्टिविटी को एक लेवल तक इस चीज के साथ कि मन नहीं कर रहा है आपको करना है। देयर इज नो अदर सोल्यूशन। थॉट जनरेट करना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। हम डिजायर करके थॉट नहीं जनरेट कर सकते। थॉट जनरेशन हमारी लाइफ स्पेस का एक एस्पेक्ट है और उसी से होगा। So we have another question by Sneha. She's asking, how do I develop a positive attitude if I am a person who generally has a pessimistic attitude towards life? तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा पेसिमिज्म है क्या और ऑप्टिमिज्म है क्या। पेसिमिज्म को अगर देखा जाए तो ये एक तरह का वैसा ही डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि हम पहले ही खतरे को भाग के अपने आप को बचा देते हैं। हम हर चीज में पहले ही खतरा देखते हैं, उस चीज को करने में या उसको एंगेज करने से पहले ही हम उसको बोल देते हैं कि हम भूल करते हैं। दैट इज व्हाट पेसिमिज्म इज। एक हर्षाली हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने डिस्कशन में छूट गई है, वो ये है कि हम क्या वो करें जिससे कि हमारा थॉट्स में चेंज है। बिकॉज अगर चेंज नहीं आएगा, आप उसी कोल्ड्रम में जी रहे हैं, उसी लाइफ स्पेस में जी रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि नए थॉट्स नहीं जनरेट हो पाएंगे तो क्या करें। So this is a question that Komal has asked her. How can I change my thought pattern? Right. So putting it very simply, you have to create diversification, and by diversification I mean आपको अलग अलग चीजों में एंगेज करना। एक मैं बहुत सिंपल सी आपको बात बता जो आजकल एक बहुत पता नहीं अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बट इफ यू विल सी इन द लास्ट 10-12 years or in the last 2 decades, the habit of something as common as reading a newspaper has gone down drastically. Yes, absolutely. उसका मतलब ये नहीं है कि हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं कंटेंट। हमारे यहाँ जो आजकल यंगस्टर्स हैं या जो पॉपुलेशन मोबाइल फोन्स के साथ है, बहुत वेरिड कंटेंट रही है, लेकिन उसका कोई रिटेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। जब मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ तो उससे मेरा मतलब ये है कि वो आपको एक लिमिटेड स्पेस में अलग अलग चीजों का एक्सपोजर देता है। आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा क्राइम के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सो देयर आर एटलीस्ट 15-20 सेक्टर्स दैट यू विजिट एवरी डे। हो सकता है कहीं पे आपके कनेक्शन, हो सकता है कोई चीज आपको इंटरेस्ट है और आप उसमें एक कदम आगे बढ़े। बहुत सिंपली पुट करते हैं, सपोज आप कहीं कोई ट्रैवल के बारे में और
आज की जो हमारी स्थिति है उसमें तुम पेपर में पढ़ने के बाद या कहीं पे भी जानने के बाद तुम गूगल में जाके उसको सर्च करते एक स्टेप नहीं तुम उसका तुमने उसको पढ़ा। हो सकता है पढ़ने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति से बात भी करो, याद आ जाए कि अरे फला व्यक्ति तो गया था, उससे आप बात करो, दूसरी स्टेप होगी। तीसरी स्टेप हो सकती है उससे बात करने के बाद तुम अपनी टिकट करा लो, थर्ड स्टेप होगी। फोर्थ स्टेप होगी कि आप वहां घूम के आ गए और आपने ब्लॉग लिख दी। तो वो जो एक इंफॉर्मेशन थी जिसकी की पोटेंशियल नहीं थी आपके लाइफ में, ये 4 स्टेप्स करने से वो आपकी लाइफ में इसका हिस्सा हो। अब उस चीज में इतनी पोटेंसी है कि वो आपके कन्वेयर बेल्ट पे एज अ थॉट आ सकती है। अब यहां से शुरू होता है प्रोसेस कि आप उसके साथ क्या करें, आप उसको कितनी अटेंशन देते हैं। थॉट हमसे मांगता क्या है? कोई भी थॉट हमसे मांगता क्या है? थॉट सिर्फ हमारी अटेंशन। जिसको हम ध्यान देने लगते हैं वो मजबूत होता चला जाता है। आप बैठे बैठे सोचने लगो कि बाहर भूत है या चोर है, आपकी रात भर में हालत खराब हो जाएगी सोचते सोचते, डर के हमारे हालत खराब हो जाएगी, बिकॉज आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इट इज लाइक वर्किंग अ मसल। जितना आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं उतनी आपकी मसल स्ट्रॉन्ग है। बहुत जरूरी है हम सब के लिए कि हम जितना अपनी जिंदगी को डाइवर्सिफाइड रखें। और ये फिर मैं कहूंगा चाहने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। You will have to do it. You will have to hold your hand and do it. And I'm saying it twice for somebody to listen. So I believe a lot of people are asking similar questions that you have answered. No, we can read some of the questions so that we know. It's always nice. Shreya was asking, why do I overthink so much? Please let me know. Because Shreya, that is, it is, another process that you have to understand. We also get comfortable in doing certain things. Right. जरूरी नहीं है कि वो चीज बहुत प्लेजरेबल ही हो। हम बहुत सारी, आपको मैं बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड, यू हैव गॉटन इनटू दिस हैबिट बिकॉज नाउ दिस इज व्हाट यू कैन, एंड आपके पास एक डिफेंस है ये कहने के लिए कि मैं तो इतनी दिमाग से परेशान हो रही हूँ, मुझे कर नहीं पा रही। हाउ गुड इज दैट एक्सक्यूज? If we ever have a chance, we will go into the details of this and see how this is so closely attached to a very important human process, which is of image management. हम सुबह जिस समय से सो के उठते हैं और जब तक हम लास्ट अपनी नींद सोते हैं, और कुछ लोग तो सोते हुए भी, हम कर क्या रहे हैं? We are just managing our image. हम लोगों को एक अपना पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं और एक अपने आप भी उसी पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं। तो ये जो आप कह रही हैं कि मुझे सोचने की आदत क्यों है, ये आदत आप यकीन मानो बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी को बच्चे को अंगूठा चूसने की आदत पड़ गई हो, बड़े को कुचली करने की आदत पड़ गई हो, किसी को गलत चलने की आदत पड़ गई हो। मैंने शायद पिछली बार भी ये बोला था कि जब मैंने स्विमिंग सीखा तो इट वॉजंट प्रॉपर। Despite becoming a decent enough swimmer, I could not excel because मेरा वो कभी रिदम आया ही नहीं हाथ और पैर। It became so difficult to change it कि मुझे शायद एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिहैब का प्रोसेस मिलता तो शायद बदल पाता। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। Sneha, thank you for your answer. And Neeraj Jigar has a pretty interesting question. He's asking, how can one justify his or her defense mechanism to the society around and vice versa to themselves? So Neeraj, पहली चीज तो ये है कि डिफेंस मैकेनिज्म हम जो है सोसाइटी के लिए नहीं अपने लिए यूज करते हैं। Correct. और डिफेंस मैकेनिज्म का पर्पस ही ये होता है कि हमारी कोई भी कमजोरी बाहर के किसी व्यक्ति को ना दिखे। जो मैंने आपसे कहा ना, इमेज मैनेजमेंट, उसका एक बहुत ही इंटीग्रल प्रोसेस है। हम नहीं चाहते कि बाहर के बारे में कोई जाने हमारे बारे में। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे घबराहट होती है। कौन चाहता है कोई जानना हमारे बारे में, कि हम कोई भी हमारे बारे में जाने?
तो पहली चीज तो आप समझिए कि डिफेंस मैकेनिज्म आपको किसी को समझाने नहीं है। हम्म, अगर आप खुद समझ जाएंगे तभी आप इनको ओवरकम कर पाएंगे और इनका कम से कम यूज कर पाएंगे। देखिए, इसका इससे ज्यादा फिजिकल आंसर नहीं हो सकता right. कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आपको नेगेटिविटी फील कर रहा है या आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस में डाल रहा है, तो सबसे पहला तो आपको उस व्यक्ति से जितना हो सके फिजिकली ही अपने आप को डिस्टेंस करना है। Right. बाकी सारी स्ट्रेटजीज बाद में आएंगी कि आप कैसे अफर्मेटिव हो, कैसे आप नो करें, ये सब करें। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उस व्यक्ति से मिनिमम लेवल का कॉन्टैक्ट। उसके बाद आएंगे आपकी कम्युनिकेशन पैटर्न कि आप उस व्यक्ति से कैसे कम्युनिकेट करें, Right. कैसे ये इंश्योर करें कि आपका फायदा ना उठाया जा सके, आप सही मौके पे सही सिचुएशन में मना कर सकें, आप अपनी बात को बिना गुस्सा बिना नेगेटिविटी के लिए पॉजिटिव एफर्मिटी के साथ कह सकें। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर आप इनकलकेट करें तो आप उन लोगों से बच सकते हैं जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं या नेगेटिव एनवायरनमेंट में रख रहे हैं। Right. Okay. देखिए हर्षाली, हमें भी ये एक चीज का फैक्टर रखना पड़ेगा, कहीं हम भी सेल्फ हेल्प टीचर्स ना बन जाए। Absolutely. Correct. तो एक लेवल के प्रवचन के बाद ये प्रवचन हो जाएगा। सो जस्ट लाइक एनी अदर सेल्फ हेल्प बुक, Yeah. I would say all the people who have heard this or would hear it or can hear it if somebody wants to, the better option will be that they try to implement some of this. Correct. यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी कि चाहने से ही नहीं होगा। नहीं, करने से। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, so please feel free to call up either our helpline, Right. which is available for you. Right. It is 080-6905-6905. Right. Sorry, I have said it again. 080-6909 and 6909. वो एक तरीका है। दूसरा, आप किसी भी समय manas.org.in पे लॉग इन करके किसी भी हमारे कंसल्टेंट से, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, खुद आके बात कर सकते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को कर पाना और इन आदतों को छोड़ना। Right. Okay. Thank you everyone for joining us. Please feel free to leave your questions and your comments in the comment section below, and we'll try getting back to you through our socials. Thank you so much. Thank you everybody.